Good morning, children. Children, in last class, we were studying chapter number 9, Changing Families. In this chapter, we have discussed about the changes in the families of Nimmi and Tezri, and because there is arrival of a new baby sister in Nimmi's family, as well as there is a changes in the family of Tezri uh, because treasuring father received a letter from his office and his family have moved to another city. So today we will discuss about the changes in the family of Nazli. So we will start from page number 71. It's a wedding. There is a great joy in Nazli homes today. Her elder cousin's brother is getting married. तो जो नेस्लीस की फैमिली नेस्ली के होम में आज बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट था क्योंकि उसके जो एल्डर कजिन ब्रदर की शादी हुई थी. सो चिल्ड्रन लुक एट दिस पिक्चर ऑफ सम नेस्लीज फैमिली. सो शी इज़ अ नेस्ली एंड शी इज़ her elder brother's elder cousin brother's wife, because and she is a new family member of Nazli's family. And in this picture you can see that there is a bridegroom and a groom, and this is the family picture of a Nazli after the coming of a new family member. So here is some question related to this Nazli's new member. Do you think that there will be any changes in the Nazli's family after this wedding? What will changes? तो बच्चों आपको क्या लगता है कि नजली के फैमिली में इस शादी के बाद क्या चेंजेस आए होंगे? तो यस, डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंजेस इन द नजली's फैमिली. एंड नाउ व्हाट विल बी चेंजेस? तो चेंजेस इज लाइक दैट नजली गेट अ न्यू सिस्टर इन लॉ. मतलब नजली को एक नई भाभी मिल गई थी शादी के बाद. Now, do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? What kind of changes? So, children, the bride has come from his home. So after the तो इसमें बच्चों ये पूछ रहा है कि जो शादी के पहले जो ब्राइड का घर था उस पर भी कुछ चेंजेस आए थे और किस टाइप के चेंजेस थे. सो डेफिनेटली यस, दे विल गेट अ न्यू फैमिली मेंबर एज अ ब्राइड ग्रूम, बट दे हैव टू सी ऑफ देयर डॉटर. सो चेंजेस आए थे कि उनके फैमिली में भी एक ब्राइड ग्रूम हो गया था, बट हाँ उनके फैमिली मेंबर में एक फैमिली मेंबर कम हो गया था क्योंकि उनकी बेटी की शादी नजली की फैमिली में हो गई, नजली के भाई से हो गई थी. नाउ टॉक टू योर मदर aunt in the family, ask them about where they lived before they got married. सो बच्चों, अब आपको अपनी मम्मा और अपनी चाची आंट की फैमिली से पूछना है कि वो शादी के पहले कहाँ रहते थे. सो यूजली चिल्ड्रन बिफोर मैरिज योर मदर एंड योर आंट्स लिव्ड विद देयर पेरेंट्स. मतलब शादी के पहले वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी. नाउ हु वर द मेंबर्स ऑफ इन द फैमिलीज देन? तब उनकी फैमिली में आपको बच्चों ये क्वेश्चंस अपनी मम्मी और अपनी आंट से पूछना होगा कि शादी के पहले उनकी फैमिली में कौन कौन रहता था. हैज एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हु? नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू टेल दैट रिसेंटली आपके फैमिली में किसी फैमिली मेंबर की शादी हुई है. अगर हुई है तो किसकी शादी हुई है? यू हैव टू टेल दिस. नाउ देयर सम क्वेश्चन आंसर. टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिली. तो बच्चों, आप अपने सारे फ्रेंड्स लोगों से पूछो कि वेडिंग उनकी फैमिली में जब वेडिंग हुए तो तब क्या क्या होता है. तो यूजली बच्चों, अ न्यू मेंबर केम इन देयर फैमिली एंड ऑल ऑफ देम एंजॉयड अ लॉट ऑन द ईव ऑफ द मैरिज. सो ऑन द वेडिंग पे एक न्यू फैमिली मेंबर घर पे आता है और उस दिन सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं. Now, what kind of a special food is cooked? So now you have to tell by your classmate that what kind of special food they like. There is so much special food like puri, kachori, sabji, vegetables, different type of vegetables. Now Chinese soup, etc. type of food is cooked in the wedding. Now, what special clothes do the bride and bridegroom wear? So usually, children, you know that a bride wore lehenga, choli, and dupatta, whereas the bridegroom usually wore sherwani and pagri. Now, what kind of songs and dances are performed at the wedding? So now you have to ask this question to your classmate, and usually they say that some type of traditional folk and modern song or dances are performed at the wedding. Now,
we saw changes taking place in the families of the Nemis, Treasuring and Nazli because of the different reasons. So now children, in this way we have completed the changes in the families of the Nemis, Treasuring and Nazli. तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया कि निम्मी, ट्रेजरिंग और नस्ली की फैमिली में कुछ डिफरेंट चेंजेस आए. So now you have to write down the reason for these changes. Now what in Nimi's family में, तो निम्मी की फैमिली में चेंज क्यों हुआ? So बच्चों we have already discussed that the change happened because of the birth of a new baby. The got a new family member. मतलब निमिस की फैमिली में उसकी न्यू बेबी सिस्टर आई थी ना, उस रीजन से उनके घर में एक न्यू फैमिली मेंबर आया था और उस वजह से उनकी फैमिली में चेंजेस हुए थे. नाउ इन ट्रेजरिंग फैमिली, अब बच्चों ट्रेजरिंग के फैमिली में क्यों चेंजेस आया था? बिकॉज ट्रेजरिंग फादर गॉट अ प्रमोशन एंड वॉज ट्रांसफर टू अ न्यू टाउन. उसके पापा का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उन्हें एक नए टाउन पे उनका ट्रांसफर हुआ था. नाउ ट्रेजरिंग फैमिली एंजॉयड अ न्यू टाउन अलॉन्ग विद द न्यू चैलेंजेस. नाउ इन नेस्लीज फैमिली, सो बच्चों अब नेस्ली के फैमिली में क्यों चेंजेस आए थे? बिकॉज अ न्यू ब्राइड केम टू नेस्ली, शी वॉज नेस्ली सिस्टर इन लॉ. तो नेस्ली के फैमिली में चेंजेस इसलिए आए थे क्योंकि उसके भाई की शादी हुई थी, इससे उसकी न्यू ब्राइड आई थी जो उसकी और जो नेस्ली की सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी थी. नाउ देयर कैन बी मैनी चेंजेस फॉर द चेंजेस इन द फैमिली. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन? So now children, you have to tell that what other type of changes in the family. So these are some reason, may be a birth of new child, मतलब नए बच्चे के पैदा होने से फैमिली में चेंजेस आते हैं. मैरिज ऑफ अ फैमिली मेम्बर, जब किसी फैमिली मेम्बर की शादी होती है. ट्रांसफर ऑफ अ फैमिली मेम्बर टू अदर प्लेस बिकॉज ऑफ द वर्क, जब किसी भी फैमिली मेम्बर का ट्रांसफर होता है वर्क की वजह से. गेटिंग अ गुड जॉब बाय अ फैमिली मेम्बर, चेंजेस तब भी आते हैं जब हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को जॉब मिलती है. और चेंजेस तब भी आते हैं बच्चों जब हम किसी अच्छे स्कूल और कॉलेज में हम जब एडमिशन लेते हैं. ओके चिल्ड्रन, so children तो आपने so you learned from this chapter that there will be a changes in the families whenever due to some reason, and the reason are as follows. Okay, now talk to 3 old people, one from your family, one from your friend's family and one from a family in your neighborhood. Ask them these questions and fill in the table. So children, now it's your activity, and this table you have filled by you. Now you take some member of your family, some member of your friend's family and neighbor's family, and ask these questions, and whatever they give the answer, you write down in this your EVS notebook. So since how many years have your family been staying here? तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी फैमिली कितने सालों से यहाँ पे रह रही है, पर्टिकुलर इन तीनों मेंबर से. फिर वेयर डिड यू फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि यहाँ आने से पहले आप पहले कहाँ रहते थे. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, अब आप ये पूछ सकते हो कि अभी आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं. हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years अगो, अब 10 साल पहले आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग थे. मे भी हो सकता है कि आफ्टर 10 years देयर विल बी अ न्यू फैमिली मेम्बर्स हैज अराइव. So children, you have to ask this question, and some more question. What were the reason for the changes in your family in the last 10 years? So बच्चों, अब जैसे कि उनके 10 साल में उनके फैमिली में अगर न्यू फैमिली मेम्बर्स इंक्रीज हो गए हैं तो आपको उनको रीज़न लिखना पड़ेगा. मे भी हो सकता है कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ हो, या हो सकता है किसी की शादी हो गई हो. सो वॉट एवर द रीज़न यू हैव टू राइट डाउन हेयर. ना हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस, आपको उनसे पूछना है कि जो ये चेंजेस हुए वो आपको कैसे लगे, मतलब इज अ गुड चेंजेस और यू हैव फेस्ड चैलेंजेस. तो वॉट एवर यू हैव टू राइट हियर. Now what problem do you face with this technology, with changes in technology? Now children, there is a changes in the technology. Now so you have to ask the question from particular these family members to do this. So children, now so actually children, we have completed our this chapter, but there is also some issues related to this family changes, so we will discuss here. Now can you tell in what way the family tree of your grandmother, grandfather in their childhood is different from your family tree today? Actually children, in your there is an activity that means you have to make a family tree, and you have to compare your family tree from your grandfather's or your grandmother's family tree. Now going back to school, up to which class do you want to study? So बच्चों, इसमें आपको ये बताना है कि आप किस क्लास तक पढ़ाई करना चाहते हो. दैट मीन यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, डॉक्टर और MSc और मास्टर, वॉट एवर डिग्री यू वांट टू गेट, यू हैव टू राइट हेयर.
अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड। हाँ बच्चों, आपको यहाँ पे ये लिखना है कि आपके पेरेंट्स ने किस क्लास तक स्टडी करी है। नॉट टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट्स अ चांस टू स्टडी। सो चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जो आपकी दादी है उनको कौन सी क्लास तक बढ़ने का उन्हें मौका मिला, क्योंकि यूजली जो अब ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट गेट अ चांस टू स्टडी, but very few people had got to chance to study. So you have to write here what class your grandmother get a chance to study. Now at what age did your grandmother get married? Now कौन सी एज पे आपकी grandmothers की शादी हुई? So children, in when your grandfather and the grandmothers get married very early age, but now children, there is a rule which made by Indian government, that means there is a law for a child marriage which was strictly fixed the minimum age of the marriage for the girls is 18 and for boys is 21 years. तो बच्चों, अब जो हमारे जो लॉ चाइल्ड मैरिज पे जो लॉ बना गया है उसमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं कर सकते हैं और लड़की की शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते हैं। मतलब जब लड़का 21 साल या 21 साल से ज़्यादा होगा तब उसकी शादी हो सकती है, और जब लड़की की एज 18 या 18 साल से ज़्यादा होगी तब हम उसकी शादी कर सकते हैं। बट चिल्ड्रन, दिस लॉ इज़ नॉट फॉर आवर ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स। Now have you heard of a law that talks about the ages before which girls and boys must not get married? हाँ, सो बच्चों, आपको इसमें ये लिखना है कि कौन सी एज पे गर्ल्स की मैरिज और बॉयज़ की मैरिज नॉट गेट मैरिड नहीं हो, उनकी शादी मतलब किस एज तक उनकी शादी नहीं हो सकती है। सो नाउ चिल्ड्रन, देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 years old. सो चिल्ड्रन, अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई है। स्टिल देयर इज़ अ लॉ, बट अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां हैं। मैनी ऑफ देम हैड टू एवन लिव स्कूल, और कई तो ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। बट ऐसे भी कुछ लड़कियों की कहानी है लाइक रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सुशीला की, जो शादी के बाद फिर से स्कूल पढ़ने गई। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत, और उसे पंचायत की भी हेल्प मिली। द पंचायत सेड दैट द यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी नॉट टू बी मैरिड ऑफ। तो पंचायत ने कहा था कि जो यंग चिल्ड्रन हैं उनको खेलना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उनकी शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू बैक टू स्कूल। और जो ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई है, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पेशल कैंप्स के थ्रू उन लड़कियों की जो मैरिड गर्ल्स हैं उनकी मदद करने, उनको वापस स्कूल भेजने में काफ़ी मदद करी है। जनगम्मा एंड चिट्टी सेज वी शुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन योर फीट। तो जंगम्मा और चिट्टी से कहती हैं कि हमें पढ़ना चाहिए और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू चिल्ड्रन।